हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 3 पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, 3 पॉजिटिव नंबर है जो कि एक इंक्रीजिंग जीपी बना रहे हैं। ठीक है, अगर हम उसके मिडिल टर्म को इन दिस जीपी को डबल्ड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा। जो हमको नया नंबर मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, एपी के फॉर्म में। हमको फाइंड करना है यहाँ कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। तो चलिए इसमें हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो नंबर्स है, लेट द नंबर बी, एक नंबर को हम ए मान लेते हैं, एक नंबर को हम ए आर मान लेते हैं और एक नंबर को हम ए आर का स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इफ अगर हम मिडिल नंबर को डबल कर देते हैं, इफ ए आर इज डबल्ड, अगर डबल्ड होगा देन क्या होगा, देन हमको 2AR इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस ए बाई 2। यही चीज जो हमको कर रहा है, न्यू नंबर आर इन एपी, तो वही चीज हम कर दिए। अब इसके फिर चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ से क्या आएगा, 4AR इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, अब यहाँ से ए कॉमन टर्म है तो ए को हम क्रॉस कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो हमारा क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। तो जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे हम सॉल्व करेंगे, आर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2A, ये फॉर्मूला लगा करके, यहाँ एक्चुअली यहाँ पर x होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के जब इसको हम पुट करेंगे तो हमें r का वैल्यू क्या मिल जाएगा, r इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 3, 2 प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, एज आवर जीपी इज इंक्रीजिंग, हमारा जो जीपी है वो कैसा है, इज इंक्रीजिंग। तो देन रेशियो हमारा क्या होगा, रेशियो भी हमारा इंक्रीजिंग होगा। रेशियो इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, माइनस को नहीं लेंगे। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रेशियो होगा, ये वाला जो है। आई होप यू गाइज विल गेट इट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। In this question, we are given an infinite geometric series with first term a and common ratio r. If its sum is 4 and the second term is 3 by 4, then we have to find the value of first term and the common ratio. Now, this is an infinite series and we know that the sum of infinite series is given by a upon 1 minus r. Right, and we are given that sum is 4. So, this is equals to 4. This is my equation 1. Now, the general form of a GP. The general form of a GP is AR square and so on. Right. So, its second term means second term will be of the form AR. Second term we are given that this is 3 by 4. So, if I calculate A from here, then this will be 3 by 4R. This is my second equation. Now, what will I do? I will substitute equation second in equation 1. Then we will have, this is my A upon 1 minus R is equals to 4. And we have A is equals to 3 by 4R. So, this will be 3 by 4R into 1 minus R is equals to 4. So, this implies that this is 3 into, this will be 16R into 1 minus R. So, this is, if we solve, equals to 316R minus 16R square. So, if I take each term on the left hand side, then this will be 16R square minus 16R plus 3 is equals to 0. Now, this is a quadratic equation in terms of r. So, by discriminant method, we will solve the value, we will evaluate the value of r. So, r will be minus b. Here, my b is minus 16 plus minus b square minus 4ac. Means 16 square minus, sorry, here this is minus. So this is minus 4 into 16 into 3 divided by 2a. Here a is my 16. So this will be 16 plus minus 16 square. We know that this is 256 and this will be 16 into 12.
16 into 12 will be 16 into 12 is 192 divided by 32. Now if we divide this, then here we will have 16 by 32 will be 1 by 2 plus minus 1 by 32 into, this is my 4 here and this is 15 minus 9 will be 6, and so root 64 we know that this is 8. So this is 1 by 2 plus minus 8 by 32, which is equals to 1 by 2 plus minus 1 by 4. Now the two values of r are 1 by 2 plus 1 by 4, or r is equals to 1 by 2 minus 1 by 4. Now here we will have, this is 4, this is 2 plus 1 which is 3 by 4, or r is equals to, this is 4, this is 2 minus 1 means 1 by 4. So there are two values of r which we have got. R is either 3 by 4 or r is 1 by 4. Now from equation 2 we have a is equals to 3 by 4 r. A is equals to 3 by 4 r. So let's put for 3 by r is equals to 3 by 4. This will be 4 into 3 by 4. So this is 1. Now for r is equals to 1 by 4. This is at r is equals to 3 by 4. And for r is equals to 1 by 4. This will be equals to 3. This is at r is equals to 1 by 4. Now let's check out the options. We have got a is equals to 1, then r is equals to 3 by 4, and a is equals to 3 if r is equals to 1 by 4. So a is equals to 3 if r is equals to 1 by 4. So we have got that option D is the correct option, where a is equals to 3 and r is equals to 1 by 4. And hence we are done. Thank you. an is equal to 3 by 4 minus 3 by 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 by 4 का होल क्यूब एंड सो ऑन. तो अगेन हमें गिवन है कि bn क्या होना चाहिए, bn होना चाहिए, bn इज इक्वल टू 1 माइनस an है, और हमें गिवन है कि हमें वो नेचुरल नंबर बताना है n नॉट, वह कंडीशन क्या है, n इज ग्रेटर देन n नॉट होना चाहिए. तो n नॉट बताना है कि bn क्या हो जाए, ग्रेटर देन an हो जाए. मीन्स 1 माइनस an क्या हो जाए, ग्रेटर देन an हो जाए. इट मीन्स 1 क्या हो जाए, 1 इज ग्रेटर देन हो जाए 2 टाइम्स ऑफ an, और आई कैन से an क्या हो जाए, an हो जाए लेस देन 1 बाय 2. ठीक है, ऐसा हमें गिवन है. ओके, नाउ देखते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है. तो अगेन an क्या है, an एक gp है. उस gp का क्या बोलते हैं, अगर हम देखेंगे फर्स्ट टर्म 3 बाई 4 है, कॉमन डिफरेंस माइनस 3 बाई 4 है. तो gp का सम क्या होता है, तो सम का फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म विच इज 3 बाई 4 इंटू कॉमन डिफरेंस का मोड क्या है इसका, लेस देन 1 है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस r क्या है, यहाँ पे r है माइनस 3 बाई 4. तो इक्वेशन हो जाएगी 1 माइनस r रेस्ट पावर n. तो देगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3 बाई 4 रेस्ट पावर n, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस r. ओके, तो 1 माइनस r क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस 3 बाई 4. तो आ जाएगा क्या हमारे पास में 1 प्लस 3 बाई 4 हो जाएगा. वो ये वैल्यू होनी चाहिए लेस देन 1 बाई 2. ओके, नाउ लेट्स सी, अगर हम देखेंगे क्या आता है हमारे पास में, तो यहाँ से आ जाएगा 3 बाई 4 अपॉन 7 बाई 4. तो वैल्यू आ जाएगी 3 बाई 7 इंटू में क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 बाई 4 रेस्ट टू पावर n, ये होना चाहिए लेस देन 1 बाई 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 करने पे क्या आ जाएगा, ये 7 बाई 6. तो मीन्स यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 3 बाई 4 रेस्ट टू पावर n, ये वैल्यू होनी चाहिए लेस देन 7 बाई 6. ओके, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आती है माइनस ऑफ माइनस 3 बाई 4 रेस्ट टू पावर n. ये क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 7 बाई 6 माइनस 1 इज 1 बाई 6. अब माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 बाई 4 रेस्ट टू पावर n इज ग्रेटर देन व्हाट, माइनस ऑफ 1 बाई 6. ठीक है, अब हम कैसे पता लगाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले n इज इक्वल टू, अगर हम 0 पुट करके देखें यहाँ पे,
अब अगेन अगर हम देखेंगे ये लिखा हुआ -3/4 रेज़्ड टू पावर n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -1/6 है। तो ये तो ऑलवेज, ये क्या है, ये इक्वेशन क्या है, ऑलवेज ट्रू इफ n इज इवन। तो आएगा ऑलवेज ट्रू इफ n इज इवन, इफ n इज इवन। बट हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है, हमें वो n बताना है जिसके बाद हर नेचुरल नंबर के लिए कंडीशन ट्रू हो जाए। तो अगेन n इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं हम। तो n इज इक्वल टू 1 पे अगर मैं चेक करूंगा, n इज इक्वल टू 1 पे, तो ये बोलता है -3/4 इज ग्रेटर देन -1/6, और हमें पता है -3/4 ज्यादा स्मॉल है, तो क्या होगा, ये इसका साइन अपोजिट होगा। n इज इक्वल टू 3 पे देखेंगे अगर, तो उस केस में क्या हो जाएगा, -3/4 का होल क्यूब हो जाएगा -27/64। अब हमें पता है ये वैल्यू भी क्या है, ज्यादा नेगेटिव है किससे, मतलब ये वैल्यू क्या है, ज्यादा नेगेटिव है किससे, -1/6 से, क्योंकि ये नेगेटिव में ज्यादा बड़ी है, तो आ जाएगा -1/6 इज ग्रेटर देन दिस। सिमिलरली अगर हम n इज इक्वल टू 5 के लिए भी ट्राई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, n इज इक्वल टू अगर हम 5 के लिए ट्राई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में माइनस, क्या आएगा, माइनस में आएगा 3 की पावर 5 क्या होता है 243, एंड 4 की पावर 5 क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू, सी 4 की पावर 3 की तरह 64 इंटू 16 हो जाएगा इनडायरेक्टली, तो आ जाएगा हमारे पास में 1024। ओके, तो आएगा 1024। तो अगर ये वैल्यू हम देखेंगे तो ये वैल्यू भी क्या है, अगर हम देखेंगे तो ये 1/6 से क्या है, छोटी है ये वैल्यू भी, तो यहाँ आ जाएगा 1/6 से छोटी है वैल्यू, तो आ जाएगा माइनस में 1/6। ये वैल्यू बड़ी आ गई हमें। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर हम देखेंगे 243/1024, एक्चुअल में अगर ये 1/6 रेशियो होता तो नीचे क्या आता, हमारे पास में आता कुछ 1400 समथिंग, बट वो आया नहीं, और नेगेटिव साइन की वजह से ये वाली वैल्यू क्या है हमारी, इससे अगर नंबर लाइन पे देखेंगे तो -1/6 यहाँ होगा, तो ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, ये हमारा क्या है, हमें पता चला कि क्या है, -1/6 बड़ा है। अब n इज इक्वल टू 7 पुट करके देख लेते हैं, तो n इज इक्वल टू 7 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, n इज इक्वल टू 7 पुट करने पाएगा तो जाएगा 2187 अपॉन 12288, और यहाँ माइनस लगाने पे अब ये वैल्यू अगर हम देखेंगे ना, तो ये जो वैल्यू है हमारी, तो ये वैल्यू भी अगर मैं देखूंगा तो ये वैल्यू भी क्या है हमारी 1/6 से बड़ी है, तो माइनस लगाने पे क्या होगा, ये नंबर लाइन के और इधर होगी, तो ये वैल्यू आ जाता है -1/6। n इज इक्वल टू 8 के लिए हमें पता है ये ट्रू है, बट अब n इज इक्वल टू 9 पे हम चेक करते हैं, तो n इज इक्वल टू 9 पे जब हम देखेंगे ना -3/4 की पावर 9, तो ये जो वैल्यू होगी ना, इसका मतलब 3/4 की पावर 9 जो होता है 3/4 की पावर 9, ये वैल्यू क्या है, ये हमारी हो जाती है लेस देन 1/6 हो जाती है। तो अगर ये वैल्यू लेस देन 1/6 होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम दोनों नंबर को, तो -1/6 हमारा यहाँ होगा, तो 3/4 की पावर 9 यहाँ होगा, तो उस केस में क्या होता है, ये हमारा ग्रेटर देन हो जाता है किससे, -1/6 से। तो अब हमें पता है कि n इज इक्वल टू 8 के लिए तो ये ट्रू है ही सही, क्योंकि वो इवन नंबर पे तो ट्रू है ही सही, हमने ऑलरेडी देखा। 9 के लिए ट्रू हो गया, तो मीन्स हमारा n क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में n इज ग्रेटर देन 7, तो ये हमारा आंसर आता है n इज ग्रेटर देन 7। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर हमें द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स which are in GP is s square. If their sum is as, then show that a square is in belongs to this limit. So we have to first of all assume those 3 real numbers which are in GP. So let those number be a upon r, a and AR. So clearly these are in GP with common ratio small r. So अभी जो हमें गिवन है कि इनके स्क्वायर्स का सम यानी a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू s स्क्वायर, यानी ये हमें गिवन है।
और अब हमें एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि इनके सम जो है यानी a अपॉन r प्लस a प्लस AR जो है वो स्मॉल a इंटू कैपिटल S के बराबर है। तो a इंटू r प्लस 1/r प्लस 1 इक्वल टू स्मॉल a इंटू s। तो अभी हमें इसके अंदर भी r प्लस 1/r के टर्म्स में लिखकर r इस एक्सप्रेशन को पहले r प्लस 1/r के टर्म्स में लिख लेते हैं ऐसे। तो अभी जो पास a स्क्वायर है वो ये आ जाएगा इक्वल टू s स्क्वायर। सो वी गेट is अब हम पूरे में r प्लस 1/r को y के बराबर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। लेट सो वी गेट इस तरफ a इंटू y प्लस 1 इक्वल टू as एंड इस तरफ a स्क्वायर इंटू y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कैपिटल S स्क्वायर। और तो अब हम इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर ले रहे हैं और S स्क्वायर की वैल्यू जो है जो कि हमारे पास यहां से हमने निकाली थी उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर इंटू y प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल a स्क्वायर इंटू कैपिटल A स्क्वायर इंटू y स्क्वायर माइनस 1। तो अभी ये जो है y स्क्वायर माइनस 1 उसको मैं इधर भेज रहा हूं और जो मेरा a स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो रहा है। तो मेरे पास एंड में स्मॉल a स्क्वायर जो है y प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन y माइनस 1 इंटू y प्लस 1। और ध्यान दें जो y है वो r प्लस 1/r यानी अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल जो कि हमेशा ग्रेटर देन जिसका मॉडुलस यानी मॉडुलस y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। तो इस केस में हम लोग y प्लस 1 क्योंकि y जो है माइनस 1 के बराबर नहीं हो सकता है तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास एंड में a स्क्वायर जो है वो y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 के बराबर आ गया है यानी a स्क्वायर जो है वो
1 माइनस प्लस 2 अपॉन माइनस y माइनस 1 के बराबर आ चुका है। तो y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 to infinity। So y minus 1 belongs to minus infinity to minus 3 union 1 to infinity। So 1 upon y minus 1 belongs to minus 1 by 3 to 0 union 0 to 1। So 2 times y minus 1 belongs to minus 2 by 3 comma 0 union 0 to 2। So 1 plus 2 upon y minus 1 belongs to 1 minus 2 by 3, that is 1 by 3 comma 1 union 1 to 3। So this has to be proved, and we have proved this thing, so it is hence proved. Here the question is, let Sk where k is equal to 1, 2 and so on up to 100 denote the sum of the infinite geometric series whose first term is k minus 1 upon k factorial and the common ratio is 1 upon k. Then the value of 100 square upon 100 factorial plus sum where 100 to k is equal to 2 mod k square minus 3k plus 1 into sk mod closed is what? Okay, this we have to find. For this, given is, first thing is given is k is equal to 1, 2, 3 and so on up to 100. Okay, and first term, okay, first term is equal to k minus 1 upon k factorial. Okay, and the common ratio is equal to 1 upon k. Okay, that means sum of infinite GP, that is geometric progression, is equal to a upon 1 minus r. Okay, now solution. Okay, for this Sk is equal to k minus 1 by putting the value here. Okay, we get k minus 1 upon k factorial upon 1 minus 1 upon k. Okay, that is equal to 1 upon k minus 1 factorial for k greater than 1. Okay, now that is sum 100 to k is equal to 2 mod k square minus 3k plus 1 and here is s. We found that 1 upon k minus 1 factorial. Okay, mod closed. If we solve this, we get 100
to k equal to 2. Mod, if we solve this equation, okay, we get k square minus 3k plus 1 is equal to 3k in 2 portion, that is 2k and minus 1k, okay, minus 2k and minus 1k. That means that is k minus 1 into k minus 1, that is k minus 1 to the whole square minus k upon k minus 1 factorial, mod closed. Okay, now again sum 100 to k is equal to 2. If we solve this, we get k minus 1, okay, k minus 1 upon k minus 2 factorial minus k upon k minus 1 factorial. Okay, that means putting the value of k is equal to 2, okay, that means 1 upon 0 factorial minus 2 upon 1 factorial, mod closed, plus 2 upon 1 factorial minus 3 upon 2 factorial, mod closed, and plus 3 upon 2 factorial minus 4 upon 3 factorial, mod closed, plus and so on up to plus 99 upon 98 factorial and minus 100 upon 99 factorial, okay, mod closed. Okay, now if we solve this, we get 2 upon 1 factorial, mod, remove the mod, minus 1 upon 0 factorial plus 2 upon 1 factorial minus 3 upon 2 factorial plus 3 upon 2 factorial minus upon 3 factorial plus and so on up to plus 99 upon 98 factorial minus 100 upon 99 factorial. Okay, if we see this, we cancel this out, these cancel with these all and this also cancel. That means we get 1 plus 2 upon 1 factorial minus 100 upon 99 factorial. Okay, that means which is equal to 3 minus 100 upon 99 factorial. Okay, hence the value of 100 square upon 100 factorial plus sum 100 upon k is equal to 1 mod k square minus 3k plus 1 sk mod, that means 100 upon 99 factorial plus 3 minus 100 upon 99 factorial. Okay, that means we get this cancel out with this, that means we get 3. This is your answer. Thank you.